Moving on, the next presentation we have is by the National Service Scheme, NSS. It is a central sector scheme of Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports. It provides opportunities to students of class 12th and 11th as well as students from technical institutes, graduates and postgraduates at colleges and universities level in India to take part in various government-led community service activities and programs. NSS aims to provide hands-on experience to young students in delivering community service, starting initially in 37 universities involving 40,000 volunteers. The scheme has now grown over the years and it is implemented today with an involvement of more than 3.8 million volunteers spread over in 396 universities, polytechnics and 47 councils of +2 level across various regular activities and special campaign programs. We now call on dais Mr. Rahul Parihar. Please give a huge round of applause for Mr. Rahul Parihar. नमस्कार। राष्ट्रीय सेवा योजना की इस करतल ध्वनि के साथ आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आज सुशासन समागम में हम सभी बारी बारी सारे संगठन किस तरह से काम कर रहे हैं, तो 24 सितंबर 1969 को 37 विश्वविद्यालय के 40,000 विद्यार्थियों के साथ प्रारंभ योजना किस तरह आज 376 विश्वविद्यालय के ऊपर क्षेत्र में 40 लाख युवाओं को जोड़ने वाला विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, एक वीडियो के माध्यम से देखते हैं और उसके बाद राष्ट्रीय सेवा योजना के अवसर और उपलब्धियों की बात करते हैं। कृपया वीडियो चलाएंगे। जब तक वो वीडियो चला रहे हैं तो मैं स्लाइड्स की और दूसरी बातें करते हैं। तो राष्ट्रीय सेवा Their spirit is unbeatable, their will unshakable. They are the volunteers of National Service Scheme. The seeds of this organization were sown by none other than the father of our nation, Mahatma Gandhi. These words still remain at the heart of our every activity. Dr. Radhakrishnan carried forward this idea and recommended introduction of national service into academic institutions. In 1958, the then Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, directed the Ministry of Education to introduce national service into academic institutions. Finally, in 1969, the then Union Education Minister, Dr. V.K.R.V. Rao, launched the NSS program in 37 universities covering all states. What started with a group of 40,000 students in 1969 has now become a force of over 32 lakhs, each of them committing 240 hours of voluntary service spread over 2 years.
helping the nation in the times of national disasters has earned NSS the unique title of Saviors. Be it the earthquake that shook Gujarat, or the tsunami that devastated coastal India, NSS volunteers were there. Besides helping in rescue and relief operations, the National Service Scheme has two types of programs: regular activities and special camping programs undertaken by its volunteers. Under regular activities, volunteers commit themselves to various activities like AIDS awareness campaigns, tree plantations, adolescent health development, improvement of campuses, and much more for 120 hours in a year. Under Special Camping Program, a camp of 7 days duration is conducted every year in the adopted areas on a specific theme. In 2009 saw the introduction of Rajiv Gandhi adventure camps involving trekking, mountaineering, etc. This is to recognize NSS volunteers' contribution towards community, to instill confidence, develop team spirit, and to channelize their energies. The first thing that attracted me to NSS was its motto that says, "Not me, but you." That act of selflessness that the motto depicts, that is what attracted me towards the NSS, and after being a part of it, I have never been proud of anything more than that. And more than anything else, NSS has also taught me to be a good listener. It has taught me how to contribute constructively towards the society. So that kind of satisfaction that I've achieved out of doing something good for the society, that has really boosted my morale. I feel that in future, when I engage with this group of people, when I'm working, say even if I'm working somewhere, or even if I go for my education further on, I'll have a very sound head on my shoulders, and I would know what to do, where to do. When the prestigious Commonwealth Games 2010 needed a large number of volunteers, NSS was there to ensure that the country's head was held high. Over 25,400 villages and urban slums adopted by the NSS. Undertaken innovative projects like creation of durable assets, 25 lakh saplings planted during the year. Over 51 lakh kids administered pulse polio drops involving around 5 lakh volunteers. During the year, 2 lakh volunteers donated blood. And all this hard work is well rewarded. NSS volunteers have the distinction of being the only civilian marching contingent at the Republic Day Parade. In fact, it's an annual event every NSS volunteer dreams to be a part of. After all, only 200, the best of the best, make it to this month-long event after going through a stringent selection process. Perfect synergy, perfect marching, and a perfect picture. And now Rajpath. समाज सेवा और समाज सेवा द्वारा शिक्षा, इस लक्ष्य के तहत जब राष्ट्रीय सेवा योजना के वॉलंटियर्स अपने एडॉप्टेड विलेज में काम करते हैं और भारत सरकार का ये निर्देश, क्योंकि योजना भारत सरकार की है, युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय की, उसके अंतर्गत जब हम राज्यों में उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से इसको संचालित करते हैं तो केवल 10+2 के ही विद्यार्थी नहीं, उसके साथ उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षा के वो सभी पाठ्यक्रम जो 2 वर्ष के हैं उनमें राष्ट्रीय सेवा योजना को हम ले सकते हैं। भारत सरकार के निर्देशों को मानते हुए, अगली स्लाइड करेंगे,
मानते हुए मध्य प्रदेश ने अपने आप में कुछ नवाचार किए हैं। नेक्स्ट, ये हमारा संगठन है, भारत सरकार, राज्य सरकार, फिर विश्वविद्यालय में प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स। उसके अंदर मध्य प्रदेश का अपना एक नवाचार जिसमें जिला संगठक है। पूरे देश में अपने आप में अनूठा प्रयोग 1980 में प्रारंभ हुआ। उसके बाद संस्था स्तर पर प्राचार्य के निर्देशन में गतिविधियां। नेक्स्ट, ये हमारा एक प्रशासनिक स्वरूप है। माननीय मंत्री उच्च शिक्षा, हमारे जो सचिव हैं, आयुक्त उच्च शिक्षा और राज्य एनएसएस अधिकारी जो एनएसएस को लीड करने वाला सबसे बड़ा हमारे यहाँ पद है। नेक्स्ट, उसके बाद राष्ट्रीय सेवा योजना की एक ये शुरुआत, किस तरह से युवाओं को जोड़कर कैंपस टू कम्युनिटी जब हम वर्क करते हैं तो वॉलंटियर्स को किस तरह समुदाय के बीच में जाकर काम का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए, ये सिखाया जाता है। नेक्स्ट, लक्ष्य और थीम जो एनएसएस के वॉलंटियर्स हैं वो अपने आप में इन सबसे वो है हमारे प्रेरणा पुरुष। 1985 में स्वामी विवेकानंद को उस वर्ष में बनाया गया जब यूनाइटेड नेशन ने 1985 को इंटरनेशनल यूथ ईयर घोषित किया। उसी साल भारत सरकार ने उनको युवाओं का प्रतीक पुरुष माना और राष्ट्रीय सेवा योजना ने उनको प्रेरणा पुरुष के रूप में मान्य किया। नेक्स्ट, ये मध्य प्रदेश में जो लीग से हटकर कुछ काम हुए, मध्य प्रदेश में प्रशिक्षण की दृष्टि से राज्य स्तर नेतृत्व प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन 1973 से प्रारंभ किया गया। हमारे प्रमाण पत्रों में एक श्रेणीबद्धता हो उस दृष्टि से 1988 में ABC प्रमाण पत्र एनसीसी की तर्ज में प्रारंभ किए गए और यह देश का पहला पाठ्यक्रम था। और इस वर्ष से पूरे भारत सरकार ने भी ABC सर्टिफिकेट को मान्यता करते हुए पूरे देश में ABC सर्टिफिकेट चलेंगे, इस बात की घोषणा की है। जिला संगठक मैंने आपको पहले अवगत कराया। राष्ट्रीय सेवा योजना के जो कर्मी हैं, वॉलंटियर्स हैं, उनके सेवाओं को मान्यता देने के लिए भारत सरकार ने 1993 में इंदिरा गांधी एनएसएस पुरस्कार प्रारंभ किए गए, जो अब एनएसएस पुरस्कार के रूप में जाने जाते हैं, जो महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया जाता है, देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। उसी की तर्ज पे मध्य प्रदेश में भी मध्य प्रदेश राज्य स्तर राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार सदी के परिवर्तन 2000 से प्रारंभ किए गए हैं। नेक्स्ट, ये पूरे मध्य प्रदेश का एक स्ट्रक्चर है कि लगभग हम लोग इस समय कितने महाविद्यालयों में हैं और हमारी जो इस समय की पंजीयन संख्या है वो 1,60,000 पूरे मध्य प्रदेश की है, जिसमें 7 विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी शिक्षण संस्थान पंजीकृत होकर कार्य करते हैं। नेक्स्ट, तो राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत जब काम होता है तो प्लांटेशन, ब्लड डोनेशन के साथ साथ ये उनके कार्य की इंपॉर्टेंस है कि जब अभी 2 वर्ष पहले कोरोना के अंतर्गत पहले लॉकडाउन की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री ने की, तब उन्होंने युवाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना के वॉलंटियर से आह्वान किया कि सेवा और जागरूकता कार्यों के लिए वो बाहर आए। उसके बाद जब दूसरे लॉकडाउन की घोषणा हुई तो उनके सुझाव पर मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली जो टास्क फोर्स बनाई, 24 घंटे में 10,624 वॉलंटियर स्वैच्छिक रूप से कोरोना में काम करने के लिए बाहर आए। कैंपस टू कम्युनिटी जब हम बात करते हैं तो इसी के एक स्वरूप में भारत सरकार की निर्वाचन आयोग ने कैंपस एम्बेसडर्स का जो एक कॉन्सेप्ट जोड़ा, उसमें राष्ट्रीय सेवा योजना को अलग से अपना एक पार्टनर माना और उसके अंतर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना उनके साथ काम करता है। मध्य प्रदेश में जब हम बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में इस समय हम रेड रिबन क्लब के अंतर्गत HIV एड्स जागरूकता और ब्लड डोनेशन, स्वैच्छिक ब्लड डोनेशन को बढ़ाने के लिए रेड रिबन क्लब्स के साथ काम कर रहे हैं। बाल अधिकार, बाल संरक्षण के अंतर्गत इन गतिविधियों और इस विषय की जागरूकता के लिए यूनिसेफ के साथ बाल अधिकार क्लब को बनाकर लगातार कैंपस टू कम्युनिटी के अंतर्गत काम किया जा रहा है। और जब काम करते हैं तो 2 तरह की गतिविधियां हैं, एक नियमित गतिविधियां जो कैंपस में होती हैं, जो ट्रेनिंग का काम करती हैं, वो विद्यार्थियों और आसपास के समुदाय के लिए होता है, और दूसरी जो गतिविधि है वो शिविरी गतिविधि है, जो सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है। सबसे छोटा शिविर जो संस्था और इकाई का शिविर होता है वो किसी एडॉप्टेड विलेज, जिसको एडॉप्ट किया गोदग्राम के रूप में, पहला जो गोदग्राम का कॉन्सेप्ट है वो राष्ट्रीय सेवा योजना से ही आया है, और वहां से वो अपनी शिविरी गतिविधियां 7 दिन की गतिविधियों में विभिन्न समुदाय के साथ, चाहे वो स्वच्छता का विषय हो, चाहे वो हेल्थ का विषय हो, मतदाता जागरूकता का विषय हो, ब्लड डोनेशन का विषय, इन सारे विषयों पर चर्चा, समुदाय के साथ भागीदारी और उसको किस तरह से क्रियान्वयन होना, उसका फीडबैक किस तरह प्रशासन के पास जाना है, इन सब के लिए काम करता है। अवसरों की जब बात आए तो राष्ट्रीय सेवा योजना में इकाई शिविर के बाद मध्य प्रदेश के जो नवाचार है वो मैंने देखे, उसके बाद नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, साहसिक गतिविधि शिविर, और उसके बाद गणतंत्र दिवस परेड शिविर, जिसका एक झलक आपने अभी वीडियो में देखा, और सबसे बड़ा देश का नेतृत्व करने के लिए युवा राजदूत बनाकर विभिन्न देशों में भारत का नेतृत्व करने के लिए युवाओं का चयन राष्ट्रीय सेवा योजना की इन गतिविधियों से किया जाता है।
इस तरह से राष्ट्रीय सेवा योजना युवाओं के बीच में लीडरशिप, किस तरह से वो समाज का नेतृत्व कर सकते हैं, समाज को किस तरह से मोबिलाइज कर सकते हैं। तो जो आज हमारा सुशासन का समागम है, तो वातावरण का एक निर्माण, समाज के बीच में जाकर उनकी कठिनाइयों, उनको समझने का काम राष्ट्रीय सेवा योजना के वॉलंटियर्स अपने शिविर में, नियमित गतिविधियों में निरंतर कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय सेवा योजना का एक मोटा सा, क्योंकि अपनी राष्ट्रीय सेवा योजना की दुनिया अपने आप में बृहद है, विस्तार है, और जब हम उसको पाठ्यक्रमों में पढ़ते हैं तो राष्ट्रीय सेवा योजना को भारत सरकार ने प्रमुख मानते हुए इस वर्ष से शिक्षा नीति में, पिछले वर्ष से ही मध्य प्रदेश में पिछले वर्ष से ही वो इलेक्टिव विषय के रूप में सेलेक्ट हो गई है। अब हम राष्ट्रीय सेवा योजना को पाठ्यक्रम के रूप में भी पढ़ रहे हैं और देश के बहुत सारे विश्वविद्यालयों ने इसको अपने इलेक्टिव विषय के रूप में प्रारंभ किया है। मैं सक्सेस स्टोरी के रूप में कुछ ऐसे वॉलंटियर्स को भी सादर आमंत्रित कर रहा हूं जो कि आप कामों के साथ एक विद्यार्थी के रूप में उन्होंने अपना काम शुरू किया और संस्था की संपत्ति के रूप में वो संस्था से बाहर आए। तो पहला नाम है अक्षय तिवारी। जय हिंद। मंच की मान्यताओं और सभागार की गरिमा को सादर प्रणाम करता हूं। बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं कि जिस योजना का एक अंग होकर जिस अनुभवों को मैंने स्वयं अनुभूत किया स्वयंसेवक के रूप में, उनको आज आप सभी के समक्ष साझा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। नमस्कार, मैं अक्षय तिवारी, राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवक मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से स्वैच्छिक सेवा के रूप में कार्य करते हुए मुझे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया है और मध्य प्रदेश के राज्य स्तर राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक के रूप में मुझे भारत के युवा राजदूत के रूप में चीन में भारत का नेतृत्व करने के लिए भेजा गया और साथ ही गणतंत्र दिवस परेड शिविर में भी मैंने सहभागिता की। राष्ट्रीय सेवा योजना को हमने बखूबी समझा। अगर मैं कहूं तो राष्ट्रीय सेवा योजना निस्वार्थ सेवा का पर्याय। 53 वर्षों की यात्रा में इस योजना ने ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए कि भारत सरकार भी विवश हुई कि विश्व पटल पर विश्व के समक्ष भारत की राष्ट्र शक्ति के रूप में गणतंत्र दिवस के अवसर पर गणतंत्र के गौरव के रूप में दिखाने का एक अवसर राष्ट्रीय सेवा योजना को दिया। और हमने वीडियो में देखा कि राष्ट्रीय सेवा योजना का एक दस्ता राष्ट्र शक्ति के रूप में विश्व के समक्ष प्रदर्शित किया जाता है। ये हम सभी के लिए गर्व की बात है। अगर मैं बात करूं सक्सेस स्टोरीज और बाकी सारी चीज़ों की, तो राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयंसेवकों से अवगत कराते हुए बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक वे स्वयंसेवक हैं जो स्वयं से पहले आपके सेवा भाव में विश्वास रखते हैं, असमर्थताओं में संभावनाओं के द्वार खड़े करते हैं। ये वे स्वयंसेवक हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण कोविड काल का वो प्रतिकूल समय है जब सभी लोग अपनी जान की परवाह के लिए चार दीवारी में कैद थे, लेकिन राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवक सड़कों पर उतरकर प्रशासन के साथ रोको टोको अभियान को सफल बना रहे थे। कहीं सैनिटाइजर का वितरण हो या मास्क का वितरण या राहगीरों को भोजन वितरण की व्यवस्था हो, प्रत्येक कार्य राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवक बहुत ही बखूबी कर रहे थे। इसके पश्चात अगली क्रम में अगर मैं कहूं तो कहने का तात्पर्य ये कि प्रत्येक स्वयंसेवक अपने आप में विशिष्ट है और प्रत्येक स्वयंसेवक द्वारा किया गया कार्य संस्था, समुदाय और समाज में बहुत ही बड़े प्रभाव डालता है। प्रत्येक स्वयंसेवक अपने आप में शत है, क्योंकि जब दूर अंधेरा करने का निश्चय कोई कर लेता है, जब दूर अंधेरा करने का निश्चय कोई कर लेता है, तो एक अकेला जुगनू ही सब अंधकार हर लेता है। सक्सेस स्टोरीज की बात करूं तो मुझे स्मरण होता है भोपाल जिले के उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान का। यह संस्था की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के स्वयंसेवकों ने गोद ग्राम बोरदा में जन सहयोग से एक राशि को एकत्रित किया। ग्राम बोरदा का अगर मैं परिचय दूं तो ये 5 वर्ष पहले ये गांव ऐसा गांव था जो खुले में शौच के लिए बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता था, लेकिन जब स्वयंसेवकों ने जन भागीदारी के माध्यम से कुछ राशि एकत्रित की और उसके माध्यम से स्वयं के श्रमदान से वहाँ पर शौचालयों का निर्माण कराया। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, जब स्वयंसेवकों ने वहाँ पर जन चेतना की गुहार लगाई और जन जागरूकता अभियान संचालित किए तो 2 वर्ष के अंदर वो गांव ओपन डिफिकेशन फ्री घोषित हो चुका है। जिस समय हम सभी स्वच्छता की अलग जगह रहे थे, उस समय भोपाल जिले के पास का गांव बोरदा ओपन डिफिकेशन फ्री हो चुका था। और ये हम सभी के लिए गर्व की बात इसलिए है क्योंकि मात्र राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों के प्रयासों से ये काम बखूबी हो पाया। इसके पश्चात अगली सक्सेस स्टोरी मुझे जो याद आती है वह है उसी संस्था द्वारा गोद लिए गए एक बस्ती ईश्वर नगर की। ईश्वर नगर बस्ती भोपाल के कोलार रोड पर स्थित एक बस्ती है
और वहाँ पर संस्था के स्वयंसेवकों ने निःशुल्क रूप से 63 बच्चों का चिन्हित किया और जो शिक्षा से वंचित थे, स्कूली शिक्षा से दूर थे, ऐसे बच्चों को शिक्षा से जोड़ा, उन्हें शासकीय विद्यालयों में उनका प्रवेश कराया और उसके बाद में 60 स्वयंसेवकों का दल आज भी ईश्वर नगर बस्ती में निःशुल्क रूप से प्रतिदिन बच्चों को निःशुल्क कोचिंग पढ़ाई दे रहा है और प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। और गर्व की बात तब होती है जब उस स्वयंसेवकों द्वारा पढ़ाए गए उस निर्धन बस्ती के बच्चों में से कई का चयन नवोदय विद्यालय की परीक्षा में हुआ है और कई आज प्रदेश और राष्ट्र के प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी उच्च शिक्षा की पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। ऐसे ही कई अनुभव, एक अनुभव मैं ग्राम झागरिया खुर्द का साझा करना चाहूँगा। ग्राम झागरिया खुर्द भोपाल के पास स्थित गांव है। वहाँ पर राष्ट्रीय सेवा योजना का एक शिविर संचालित किया गया था। मूलतः वह बंजारा समाज का विस्थापित गांव था और जब हम उस शिविर परिसर में गए तो वहाँ के लोग हम लोगों को पहचानने में से भी इनकार कर रहे थे और एक्सेप्ट तो कर ही नहीं सकते थे। लेकिन जब स्वयंसेवकों द्वारा वहाँ पर जन जागृति अभियान संचालित किए गए, आप विश्वास नहीं मानेंगे, बड़े बुजुर्ग तो ठीक, जब छोटे छोटे बच्चे उस परिवेश में आए, राष्ट्रीय सेवा योजना की उन्होंने गतिविधियों को देखा, वे बहुत प्रभावित हुए। उनको बताना बहुत आसान हो पाया और स्वयंसेवकों के प्रभाव के कारण वो गाँव के सभी बच्चे आज नशा मुक्त हो चुके हैं। जो बच्चे नशे के आदी थे, जब उसका प्रमाण हमको तब प्राप्त हुआ जब 3 माह बाद पुनः हम ग्राम झागरिया खुर्द में गए और हमने दीवारों पर जो नारा लेखन का कार्य किया गया था वो नारे फेड हो चुके थे। लेकिन जब 3 माह बाद गए तो स्वयंसेवकों ने जिस चीज़ को देखा वो बहुत आश्चर्य की बात थी कि जो बस्ती के बच्चे थे, जो गांव के बच्चे थे, जो नशे की आदत से लिप्त थे, उन्होंने उस नारों को पुनः लिखा, उन नारों को पुनः जीवित किया और उसके बाद में हम सभी के साथ रैली निकाली और यात्रा में नशा मुक्ति के नारे लगा रहे थे। ये अपने आप में विशेष उपलब्धि राष्ट्रीय सेवा योजना की है। सेवा कार्य अनेक हैं, चाहे मतदाता जागरूकता की बात हो, चाहे वित्तीय साक्षरता की बात हो, समाज सेवा का कोई संकल्प हो या रक्तदान कर पीड़ितों की जान बचाने की बात हो, ऐसे अनेक क्षेत्रों में राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवक कार्य करते हैं। लैंगिक समानता की बात हो या फिर समाज में असहायों को सहारा प्रदान करने की बात हो, प्रत्येक क्षेत्र में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। और मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष होता है कि जब मुझे चीन में भारत की युवा राजदूत बनाकर भेजा गया और वहाँ पर जब बायलेटरल ट्रीटीज के साइन हो रही थी और द्विपक्षीय संबंधों के ऊपर चर्चा हो रही थी और वॉलंटियरिज्म और सोशल सर्विस जैसे टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों को आशा की निगाह के साथ देखा जाता है। मुझे वो अवसर प्राप्त हुआ कि मैं चीन की भूमि पर भारत का प्रतिनिधित्व कर सकूँ, समाज सेवा के क्षेत्र में क्या सुधार संभावित हैं उनको नीति निर्धारण में इनका समावेश करवा सकूं। तो ऐसे बहुत सारे अवसर प्राप्त होते हैं। सक्सेस स्टोरीज अनेक हैं। प्रत्येक स्वयंसेवक जो कार्य करता है अपने आप में वो सार्थक हैं, क्योंकि सभी के कार्यों से एक बदलाव हमारे समाज में आता है और सभी उस कार्य के लिए करबद्ध होकर तत्पर हैं और कार्य कर रहे हैं। मैं बोलना चाहूँगा कि यदि हम इसी तन्मयता, इसी ऊर्जा के साथ कार्य करते हैं, नए नवाचारों को समावेशीकरण करते हैं और सुशासन के साथ आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित ही वो दिन दूर नहीं। अब जब हम इंडिया विजन 2047 के गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को हम प्राप्त कर भारत को पुनः विश्व गुरु के शिखर तक पहुंचाने का प्रयास कर पाएंगे और गर्व से कह पाएंगे कि सर्व देशों में अधिक जिस देश का उत्कर्ष है, सर्व देशों में अधिक जिस देश का उत्कर्ष है, वह देश मेरा देश है, वह देश भारतवर्ष है, वह देश भारतवर्ष है। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय हिंद।